Morning students, today we'll discuss about group 17 elements. They are fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. These are present here and their atomic number is 9. Then we have to add their 8, then we have to add their 18, then 18, then 32. So 9, 17, 35, 53 and 85. And they are actually called the halogens. And next one is coming fluorine and chlorine. They are actually abundant and they are actually available in which one? Insoluble fluorides. जैसे example fluorspar, CaF2, cryolite, Na3Lf6, and fluoroapatite, Ca3PO4 whole to CaF2. These are the actually available. Fluorine is available. Otherwise, in case of the chloride, it is sodium chloride, carnallite. Carnallite is the double salt, KCl, MgCl2, 6H2O. So these are the actually availability or occurrence of halogens. Next one, we are coming for the electronic configuration. All of you know this is NS2 NP5, and here also it is given to us. Look at here, that is 2s2 2p5, then 3s2 3p5, then it is 3d10 4s2 4p5 in case of bromine. In case of iodine is 4d10 5s2 5p5, and next one is coming about the F electrons. F block electrons are entering here. So 4f14, 5d10 and 6s2 and 6p3. Okay. Next one, we are coming for the definitely atomic and ionic radii will be increasing because we are going down the group. So new shells are added there. We can see here the covalent radius is 64, 99, 114, 133 and 64 is extremely small because of this. The atomic are highest electronegativity. Fluorine की electronegativity सबसे highest होता है. तो यहाँ पे देखो extremely small fluorine, the atomic radius of fluorine like other elements of second period is extremely small. Atomic and ionic radii increase from fluorine to iodine due to increasing number of quantum cells. Over. आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेटली डिक्रीज होगा क्योंकि साइज जब इंक्रीज हो रहे हैं तो ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप. ओके, ये भी अंडरस्टूड है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी व्हाट विल बी हैपनिंग नाउ, दैट विल बी कमिंग लेस नेगेटिव. हैलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द, अगर पीरियड्स के हिसाब से करें तो सबसे ज़्यादा जब हम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो डेफिनेटली द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी कमिंग more negative there, and when you are going down the group at that condition we can see that the becomes the electron gain enthalpy become less negative. Okay, so electron gain enthalpy you can see here, electron gain enthalpy it is coming about the less negative. You can see when you are going down the group. So here it is coming electron gain enthalpy of the elements of the group becomes less negative down the group. Okay, however one more question is coming always, it is negative electron gain enthalpy of fluorine is less than the chlorine. जबकि फ्लोरीन की क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, देन क्लोरीन को आना चाहिए, लेकिन क्लोरीन की क्या है, हाई है देन फ्लोरीन. रीजन वही दैट कि फ्लोरीन की क्या होता है कि एटॉमिक साइज बहुत ही लेस होता है एंड एट दैट कंडीशन दे आर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स आर देयर. सो डेफिनेटली टू गेन वन इलेक्ट्रॉन है ना, दे हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी एंड दैट्स वाई द वी कैन से the fluorine electron gain enthalpy is less negative than the chlorine. Okay, and then it is coming, it is due to small size of the fluorine atom. As a result there are strong inter-electronic repulsion. बहुत important line है, in the relatively small 2p orbital of fluorine, and thus the incoming electron does not experience much attraction. समझ में आ गया आप लोग को, क्योंकि क्लोरीन जो है इसका साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है दे आर फार फ्रॉम ईच अदर. सो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतना नहीं आएगा जो फ्लोरीन के अंदर आएगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ईजी हो जाएगा देन कंपेरिजन टू फ्लोरीन. तो इसलिए फ्लोरीन की जो है कि लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन. ओके, जबकि इसका मतलब ज़्यादा होना, इसका कम होना चाहिए, इसको ज़्यादा होना चाहिए था, तबकि जस्ट इनवर्स हो रहे बिकॉज ऑफ इसकी लेस एटॉमिक साइज और बहुत ही स्मॉल एटॉमिक साइज. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन इंटर एटॉमिक इलेक्ट्रॉन रिपल्शन. क्लियर? Then electronegativity, they have if we are discussing about the going from left to right in a period, to definitely in comparison to which one 16 के हिसाब से they have high electronegativity and electronegativity decrease down the group. Fluorine is the most electronegative element in the periodic table. Physical properties में क्या क्या आएगा ना, दे डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है इसमें. फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड. दे आर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट स्टेडीली इंक्रीज विथ एटॉमिक नंबर, क्योंकि जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इंक्रीजिंग.
and definitely their boiling point, melting point also steadily increase with the atomic number. ऑल हैलोजेंस आर कलर, और ये तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से जितना बड़ा होगा उतना क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो विल बी इंक्रीजिंग. अभी दे आर ऑल्सो शोइंग द कलर बिकॉज दे कैन एब्सॉर्ब द रेडिएशन, विजिबल रीजन की रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई दे कैन शो द कलर. जस्ट लाइक फ्लोरीन हैज येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड, एंड आयोडीन वायलेट कलर. Fluorine and chlorine react with water, bromine and liquid. Bromine and iodine are only sparingly soluble in water, but soluble in various organic solvents जैसे chloroform है, carbon tetrachloride, carbon disulfide, and hydrocarbons to give the colored solution. Okay, next one we are coming anomalous and anomaly. We notice that the 7.8 is a smaller enthalpy of dissociation of fluorine compared to that of the chlorine. तो dissociation enthalpy you can see here कि fluorine की dissociation enthalpy क्या है, smaller than which one, chlorine. Why it is that, what is the reason behind that? तो एक्चुअली क्या होता है, वही सेम बात है कि फ्लोरीन की जो साइज होता है 2p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्चुअली क्या होता है कि दे आर रिपीलिंग ईच अदर. सो डेफिनेटली बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए दो फ्लोरीन के एटम के बीच जो मतलब मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड होता है, दैट डिसोसिएशन एंथैल्पी इज कमिंग वेरी लेस देन दिस वन, क्योंकि अट्रैक्शन यहाँ पे कम हो जाता है फ्लोरीन फ्लोरीन एटम के बीच, है ना. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है. तो एक्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्रॉम क्लोरीन ऑनवर्ड शो द, यहाँ पे अगर एक्स डिसोसिएशन हम देखें कि इधर से क्या हो रहे, कम हो रहे, लेकिन यहाँ पे बढ़ गए, जबकि कम होना चाहिए क्योंकि साइज बढ़ रहे. तो डेफिनेटली उसका फ्लोरीन फ्लोरीन एटम के बीच, मतलब यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि फ्लोरीन फ्लोरीन या क्लोरीन क्लोरीन या ब्रोमीन ब्रोमीन, एट दैट कंडीशन जब भी आप नीचे की तरफ जाओगे उतना साइज क्या हो जाएगा ना, इसका साइज बड़ा हो जाएगा. तो डेफिनेटली इंटर जो एटॉमिक जो डिस्टेंस दैट विल बी कमिंग हेयर मोर, इंक्रीज होता जाएगा. तो जितना इंक्रीज होता जाएगा अट्रैक्शन उतना कम होता जाएगा. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. कम एनर्जी देके आप इसको डिसोशिएट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली देखा जाए कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम किससे, ना क्लोरीन से. व्हाई इट इज, ना फ्लोरीन देयर एटॉमिक साइज इज वेरी लेस एंड दे आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर. इसका डिस्टेंस क्या होता है, सबसे छोटा होता है. एंड इसको हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर कमिंग, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है. तो साइज छोटा है दोनों का ही और डिस्टेंस भी कम है. तो यहाँ पे क्या होता है, इंटर एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन दैट विल बी मोर इन केस ऑफ फ्लोरीन देन द क्लोरीन. सो एट दैट कंडीशन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑलरेडी ये रिपील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कम एनर्जी से ये दोनों डिसोशिएट हो जाएगा. बट यहाँ पे इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना. तो ये है रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर देयर, दैट्स वाई ऑलरेडी रिपीलिंग कंडीशन में है ही ये दोनों को. तो डेफिनेटली अगर एनर्जी चाहिए तो इसमें कम एनर्जी से ये डिसोशिएट हो जाएगा देन कंपेरिजन टू द क्लोरीन मॉलिक्यूल. ओके, सो यहाँ पे देख ही रखा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. Reason is, look at here. So it is coming here. Reason for this anomaly is the relatively large electron repulsion among the lone pair in F2 molecule, where they are much closer to each other in case of chlorine, है ना. तो यहाँ पे देन इन केस ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या वही ऑलरेडी आई हैव शोन दैट वन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आर देयर बिकॉज ऑफ द एटॉमिक साइज इज वेरी लेस. सो डेफिनेटली फ्लोरीन जो मॉलिक्यूल होता है, ये जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसमें लेस एनर्जी में ये डिसोशिएट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज. तो पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ऑल द हैलोजन एक्सिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दे आर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. एंड हाउएवर क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन एक्सिबिट, जितना नीचे की तरफ जाओगे उतना साइज क्या होता जाएगा, बड़ा हो जाएगा. तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, और इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इलेक्ट्रॉन दे आर वेरी इजी और दे आर वेरी प्रेफरिंग व्हिच वन टू गिविंग द इलेक्ट्रॉन. सो दैट्स वाई +1 +3 +5 +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराएगा ये. और जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराएगा या -1, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, दैट इन नॉर्मल NH2 कंडीशन. जब ये फास्ट एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन मूव हो गया कहाँ पे कि ND में, डी ऑर्बिटल में, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो +3 ऑक्सीडेशन शो कराएगा, फिर +5 ऑक्सीडेशन शो कराएगा, फिर +7 ऑक्सीडेशन शो कराएगा. ठीक है ना. तो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आर realized mainly when the halogens are in combination with the small and highly electronegative fluorine
एंड ऑक्सीजन एटम। जैसे फ्लोरीन की साथ अटैचमेंट हो तो डेफिनेटली फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन के साथ फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन देट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन विल गिविंग द इलेक्ट्रॉन, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ओनली फ्लोरीन को छोड़ के कोई -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कराता है, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे है कि ठीक है, तो इन द इंटरहैलोजन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स में, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उसमें क्या होता है कि अगर फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, इसमें क्या प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन शो कराता है। मतलब जब कंपाउंड बनाते हैं तो दूसरी अगर एलिमेंट क्या है कि अगर दूसरी एलिमेंट अगर फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या इंटरहैलोजन के में बीच जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, सो एट दैट कंडीशन दे आर शोइंग द +4 या +6 occur in the oxides and oxo acids of chlorine and bromine. क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए हो कि क्लोरीन और ब्रोमीन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। द फ्लोरीन एटम हैज़ नो डी ऑर्बिटल्स एंड इट्स वैलेंस शेल, देयरफॉर कैनॉट expand its octet, being the most electronegative only it will show the -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन तो डी ऑर्बिटल नहीं है तो डेफिनेटली +3 +5 ये शो नहीं कराएगा। +3 कब शो करेगा, जब डी ऑर्बिटल होगा, तो नहीं है तो डेफिनेटली वो 1 ही शो कराएगा, और दैट ऑल्सो इन माइनस, क्योंकि उसके वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, सबसे इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, तो डेफिनेटली ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दे विल शो। All the halogens are highly reactive, they react with metals and non-metals। तो यहाँ पे देखो इन द डाउन द ग्रुप एंड द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजन डिक्रीजेस, जितना नीचे आएगा उतना ही हैलोजन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द हैलोजन, क्योंकि दे आर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई खुद रिड्यूस हो रहे और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। दैट्स वाई F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन एंड इट ऑक्सीडाइजेस अदर हैलाइड, है ना, अदर हैलाइड आयंस इन सॉल्यूशन और इवन द सॉलिड फेज। इन जनरल अ हैलोजन ऑक्सीडाइज हैलाइड आयंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। तो जैसे फ्लोरीन है तो ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की जो कंपाउंड है उससे उसको डिस्प्लेस करेगा, और दैट मीन्स दे आर गेटिंग एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोरीन माइनस में खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से क्या हो जाएगा, दे आर कन्वर्टिंग इनटू मॉलिक्यूल। जैसे फ्लोरीन के साथ 2Cl माइनस, तो इन दैट कंडीशन फ्लोरीन माइनस एंड Cl2 ये आएगा रिएक्शन। क्लोरीन के साथ क्या हो गया, उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को चाहिए ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन के साथ ओनली आयोडीन के साथ ही वो रिएक्ट करेगा एंड द प्रोडक्शन इज कमिंग दिस वन। दैट मीन्स इट इज शोइंग द हैलोजेंस आर एक्चुअली शोइंग द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड दे आर रिएक्टिंग विद देयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन कंपाउंड एंड दे आर oxidizing them, and they are oxidizing them and they themselves they are reducing। ठीक है ना, तो ये हो गया 3। The decreasing oxidizing ability of the halogen in aqueous solution down the group is evident from the standard electrode potential। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना हाई है उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑलरेडी यू हैव डिस्कस इन क्लास 11। तो ये डिपेंड करता है, एक्चुअली इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे ये डिपेंड करता है किसके ऊपर ना, एक तो डिसोसिएशन जिसको एटोमाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये तीनों के ऊपर डिपेंड करते कि व्हाट विल बी देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये तीनों बैलेंस में अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब मोर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर, दैट इज द मेन थिंग। मतलब पॉजिटिव का ऊपर जो आएगा दे आर स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो ये डिपेंड करते हैं, ये तीनों जो एंथैल्पी उसके ऊपर ही डिपेंड करता है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस कैन फर्दर बी इलास्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन विथ वाटर। देखो यहाँ पे भी F2 प्लस H2O, तो H प्लस OH माइनस है ना, तो ये H प्लस OH माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो OH माइनस से क्या किया इन्होंने, माइनस को ले लिया है ना, OH माइनस को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडिकल में, एंड कन्वर्शन प्रोडक्शन क्या हुआ, ऑक्सीजन। ठीक है ना। तो दिस रिएक्शंस आर ऑल्सो शोइंग दैट दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद किस में कन्वर्ट हो गया, F माइनस में। तो देखो रिएक्शन क्या है, 2F2 प्लस 2H2O, खुद ये H2 को तो डिसोशिएट हो जाता है H प्लस OH माइनस में, तो H प्लस तो रह गया, किसको उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। OH माइनस की इलेक्ट्रॉन जो है दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय फ्लोरीन एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू F माइनस, एंड दो OH माइनस जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के किस में कन्वर्ट हो गया था, OH रेडिकल में, दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर एक्चुअली। तो दिस इज एक्चुअली द रिलेशन। व्हाट इज कमिंग हियर,
जब फ्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा तो F माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। X2 मतलब अगर क्लोरीन और ब्रोमीन हो, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दे आर हाइपोहेलाइड्स में HOX में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड हाइपोहेलास एसिड एंड हाइड्रोहेलिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोहेलिक, मतलब HCl तो हाइड्रोक्लोरिक, HBr तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमाइड एसिड, और यहाँ पे हाइपोहेलास इसको बोलते हैं HOX को। तो दिस इज द कंडीशन, यू कैन सी हियर फ्लोरीन ऑक्सीडाइजेस वाटर टू ऑक्सीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, and whereas chlorine and bromine react with water to form corresponding hydrohalic and hypohalous acid. The reaction of iodine with water is non-spontaneous. ये जो reaction है ना, ये non-spontaneous होता है, and iodine can be oxidized by oxygen in acidic medium. यहाँ पे just reverse reaction हो जाता है, मतलब iodine oxygen के जो इलेक्ट्रॉन होता है, that is actually oxygen is accepted the electron there and it is converted into I2, मतलब ये oxidize होता है और दूसरों को रिड्यूस करते हैं, ये एक्चुअली रिवर्स रिएक्शन फॉर आयोडीन। अदरवाइज क्लोरीन ब्रोमीन के लिए हाइड्रोहेलिक एसिड या हाइपोहेलस एसिड इज दे आर गिविंग, फ्लोरीन के लिए दे आर एक्चुअली गिविंग राइज टू ऑक्सीजन, मेन प्रोडक्ट दिस वन। Now we're coming for the anomalous behavior of the fluorine. All of you know they are the actually topmost element of the 17 group. That's why they are electronegative high and high ionization enthalpy. There are unavailability of the d orbital. Atomic size is very less. These are the actually point behind that why the fluorine is showing anomalous behavior. You can see that one. The anomalous behavior of fluorine is due to small size, highest electronegativity, low F bond dissociation enthalpy. ये भी आपको डिस्कस कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऑलरेडी रिपीलिंग कंडीशन में रहता है और लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट द फ्लोरीन मॉलिक्यूल इनटू F atom, fluorine atom, and non-availability of the d orbital. So these are the reason behind that why the fluorine is showing anomalous behavior. Most of the reactions of fluorine are exothermic due to small and strong bond formed by it with other elements. It forms only one oxoacid while other halogens form a number of oxoacid, क्योंकि इसके पास only -1 oxidation state है. Hydrogen fluoride is liquid and due to strong, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड अदर हाइड्रोजन हैलाइड आर गैसेस, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म देयर हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो इसमें क्या होता है ना, नेक्स्ट वन इज कमिंग अगेन हाइड्रोजन फ्लोराइड, है ना, तो इट इज कमिंग हियर विच वन, दिस आर कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, सो दे आर शोइंग द स्ट्रॉन्ग इंटर molecular attraction, and that's why they are actually they are actually coming in which state, liquid state, others all are in gaseous state. Okay, next one we are coming हाइड्रोजन हैलाइड। अच्छा ये तो हो गया, तो दे ऑल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, दे ऑल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव द हाइड्रोजन हैलाइड्स, बट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, क्योंकि जितना नीचे की तरफ जाएंगे उतना ये जो बॉन्ड की जो लेंथ है दैट विल बी इंक्रीजिंग, सो डेफिनेटली इजीली द हाइड्रोजन कैन बी रिलीज्ड, है ना, ब्रेक इजीली हो, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो आयोडीन की साइज बड़ा है, फ्लोरीन की साइज सबसे कम है, तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसमें सबसे कम है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में इसमें सबसे ज़्यादा है, तो इसके ऊपर बहुत सारा डिपेंड होता है। जैसे देखो हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पे बोला ना, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, द रीजन इज दैट ओनली, क्योंकि एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि अट्रैक्शन फॉर हाइड्रोजन इज डिक्रीजिंग। हाइड्रोजन हैलाइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड आर गिवन हियर। अच्छा, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस एसिड वेरीज इन ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा किसके पास आएगा, H है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करते हैं ना, हाउ इजीली दे कैन लूज देयर H प्लस, गिव देयर H प्लस टू अनदर, और दैट इज कॉल्ड द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो HI की लेंथ सबसे ज़्यादा होने के कारण द H प्लस फ्रॉम HI विल बी रिलीज वेरी इजीली। द स्टेबिलिटी ऑफ दिस हैलाइड डिक्रीज डाउन, क्योंकि जितना नीचे की तरफ आओगे तो इतना क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा। द स्टेबिलिटी ऑफ दिस हैलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन द ऑर्डर, क्योंकि HI की डिस्टेंस ज़्यादा हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, कम चाहिए इसको, इजीली ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी इसमें सबसे लिस्ट आएगा। Reactivity towards oxygen, halogen from many oxides with oxygen, but most of them are unstable.
Achha, fluorine forms two oxide, oxygen fluoride OF2 and O2F2. However, that is only OF2 is thermally stable in 298 Kelvin. Okay, next one we are coming for these oxides are essentially oxygen fluoride because of the higher electronegativity of the fluorine than oxygen. So fluoride will be coming at the last, oxygen fluoride. है ना. एंड इसके बाद बोथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट O2F2 ऑक्सीडाइज द प्लूटोनियम. कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में. 2PuF6 plutonium hexafluoride, and the reaction is used in removing plutonium as PuF6 and from spent nuclear fuel. So this is the very important application of O2F2. Chlorine, bromine, iodine form oxide in which the oxidation state of this halogen range from +1 to +7. तो यहाँ पे आप देख लिया कि O2F2 में फ्लोरीन का क्या आ जाएगा. फ्लोरीन इज एक्चुअली कमिंग हेयर -1 है ना. फ्लोरीन इज शोइंग -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. एंड नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर द फ्लोरीन ब्रोमीन. तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्या हो जाएगा? +1 to +7 दे आर शोइंग, क्योंकि दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन. हेयर फ्लोरीन के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते. और यहाँ पे दे कैन टेक द इलेक्ट्रॉन, they can give the electron, that's why they are showing +1 to +7 है ना. Next one we are coming, the combination of kinetic and thermodynamic factors lead to the generally decreasing order of stability of oxides formed by the halogen. तो सबसे means stable कौन सा आएगा? iodine. Then means it is coming the decreasing order of stability of oxide formed by the halogen, that is I is सबसे ज़्यादा है, then chlorine, then bromine. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की जो ज़्यादा आएगा उसमें क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगा. द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन टेंड टू मोर स्टेबल दैन द लोअर वंस. तो ये हम बताएंगे बाद में भी. हायर ऑक्साइड जैसे मान लो यहाँ पे कि SnCl4 और SnCl2, तो स्टेबल कौन आएगा? SnCl4 आएगा. यहाँ पे जो ऑक्साइड के हिसाब से भी वही बोल सकते हो, या ऑक्साइड के हिसाब से बोल सकते हो, या वी कैन से द अनदर कंपाउंड ऑल्सो वी कैन से. जैसे ये मान लो क्लोरीन की ऑक्साइड में कौन है? Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड टू एक्सप्लोड. Cl2 इज यूज फॉर ब्लीचिंग एजेंट एंड पेपर पल्प टेक्सटाइल इन वाटर ट्रीटमेंट. दिस आर द कॉम्बिनेशन यू कैन से द हियर +1 +2 +3 +4 +1 to +3 then +5 then +7 in that way it is increasing. Then it is coming about the next one is coming about the bromine oxide भी ऐसे ही है. bromine Br2O, BrO2, BrO3 ना, in that condition least stable that is. And it is coming, the bromine oxide is coming in that way also, and exist only at low temperature. They are very powerful oxidizing agent. Okay. The iodine oxide I2O4, I2O5, I2O7 are insoluble solids and decomposed on heating. I2O5 is very good oxidizing agent and is used for estimation of carbon monoxide. So these all are actually they are, we can say, the oxidation state, as well as they are showing +1 to +7 for chlorine, bromine and iodine, and their oxide formulas are given here. Next one we are coming for reactivity towards the metal, and it is coming about which one कि metal के साथ कैसे reaction करेगा ना. halogen react with metal to form the metal halide. example आपके पास है magnesium bromide. and the ionic character of the halides decrease, मतलब जितना नीचे की तरफ जाएगा उतना क्या हो जाएगा? साइज बड़ा हो जाएगा. तो in that condition कि आयोनिक कैरेक्टर ऑफ द हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ क्या क्या है? MF, MCl, MBr एंड MI. सबसे ज़्यादा किसका आएगा? MF का. where M is monovalent. if a metal exhibit more than one oxidation state, the halides in, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, halides in higher oxidation state will be more covalent than one in the lower oxidation state. देखो SnCl2 और SnCl4, तो at that condition who is showing more covalency here? SnCl4. why? because the oxidation state is high here, है ना. सो एट दैट कंडीशन जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो जाएगा तो एट दैट कंडीशन कोवैलेंसी विल बी इंक्रीजिंग. जब भी ऑक्सीडेशन वी कैन से द ऑक्सीडेशन नंबर हाई हो जाएगा, दे आर शोइंग कोवैलेंसी. सो एट दैट कंडीशन दे आर एक्चुअली स्टेट विल बी मोर कोवैलेंट देन वन इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. Reactivity towards halogen. On the other halogen, the halogen combine amongst themselves to form a number of compounds known as the interhalogen, that is XX-3 and XX-5. So in that condition that is coming, less electronegative will be coming the center atom and more electronegative will be coming at the surrounding, where X is the largest size halogen and X dash is the smallest size halogen.
तो डेफिनेटली ये है कि स्मॉलर साइज तभी होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा. तो इसलिए मैंने बोला कि सराउंडिंग जो एटम है दैट विल बी कमिंग विद स्मॉलर साइज एंड सेंटर एटम विल बी कमिंग इन लार्जर साइज. दैट मीन्स सराउंडिंग एटम विद द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So these are actually the reaction. Fluorine exhibit only -1 oxidation state, while other halogen exhibit +1, +3, +5, +7, because the most electronegative element and cannot exhibit in positive oxidation state because they cannot give. They are only taking the electron and they do not have any other halogen have d orbital, so they can expand their octet also, and that's why fluorine only exhibit -1 oxidation state. Okay, so these are the actually reason behind that.